So children, so far we have covered the natural modes of vegetative propagation, and today we are going to take on artificial vegetative propagation, which is also called as horticultural methods of vegetative propagation. Children, these artificial vegetative propagation methods were developed by horticulturists to quickly multiply the desirable varieties of plants from their vegetative parts, from their somatic parts like leaves, roots, and stems. Okay, this vegetative this artificial vegetative propagation is done through cutting, layering, and grafting. Okay, so let's begin with cutting. Cutting is what? कुछ प्लांट्स के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को, या तो लीफ को, या स्टेम को, या फिर उसकी रूट को, किसी भी सोमेटिक पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, and each piece is called a cutting. Clear? Okay, and that piece is placed into soil, and after some time what we observe, that piece develops into an independent and individual plant. That is called cutting method. Okay, so cutting root में भी हो सकती है, stem में भी हो सकती है, leaf में भी हो सकती है. Okay, so let's talk about root cutting. Root cutting की examples हमारे पास like orange, lemon, etc. Okay, what happens in root cutting? In certain plants like orange and lemon, we cut the roots into small pieces, and each piece is called cutting, and then each cutting is treated with a growth promoting chemical substance like IBA, that is indole 3-butyric acetic acid, or NAA, naphthalene acetic acid. And after treating that cutting with IBA or NAA like growth promoting substances, these cuttings are placed under the soil, and after some time, after few days, that cutting starts producing roots and shoots, and later on that cutting develops into an independent and individual plant. Okay, that is called root cutting. Okay, next is stem cutting. In stem cutting, the stem of some plants is cut into small pieces. Okay, each piece is about 20 to 30 centimeter long in its size. Okay, and the lower end of each piece, is dipped into a growth promoting hormone like IBA and NAA for some time, and then that cutting treated with IBA or NAA like growth promoting substances, that cutting is placed into soil, is covered inside soil. Okay, and later on that cutting of stem develops into new plant. Okay, and it is performed in certain plants like rose, China rose, sugarcane, bougainvillea, etc. Okay, next is leaf cutting. In some plants like snake plant and Centpolia. Okay, in these plants the leaf is cut into two or many pieces, and each piece is placed into soil in vertical position. Okay, and then each leaf cutting develops into a new plant. Okay, so this is about the cutting. Okay, the next method of artificial vegetative propagation is layering. Okay, so layering is what? Layering is induction of roots formation on shoots which are still attached to parental plant. Okay, means अगर किसी शूट में, किसी प्लांट की ब्रांच में हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप कर देते हैं, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस कर देते हैं, तो उस मेथड को हम लोग लेयरिंग मेथड कहते हैं. क्या बोलते हैं? लेयरिंग. ओके, सो लेयरिंग इज व्हाट? दिस इज द इंडक्शन ऑफ रूट्स आर्टिफिशियली
induction of the formation of roots artificially on the shoots which are still attached to parental plants. Okay, कोई भी प्लांट, नॉट कोई भी मींस उन प्लांट्स की बात करें जिनमें ये लेयरिंग हो सकती है, उन प्लांट्स में से कोई भी प्लांट जिसकी ब्रांच पर, जिसके शूट पर हमें एडवेंटिशियस रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करना, रूट्स को डेवलप कराना है, ठीक है ना, उस शूट को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उस पर कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा एडवेंटिशियस रूट्स को डेवलप कराते हैं, रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस कराते हैं। लेकिन याद रहे वो ब्रांच जिस पर हमने अभी आर्टिफिशियल तरीके से रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस किया है, वो ब्रांच, वो शूट अभी भी पेरेंटल प्लांट से अटैच्ड है। क्लियर? सो उस मेथड को, उस रूट फॉर्मेशन के इंडक्शन मेथड को ही हम लोग लेयरिंग कहते हैं। ओके, लेयरिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है इसका डिफॉलिएशन। डिफॉलिएशन क्या होता है? जिस शूट को हमने लेयरिंग के लिए सिलेक्ट किया है, उस शूट के निचले पोर्शन से, बेसल पार्ट से हम पत्तों को, लीव्स को रिमूव कर देते हैं, एंड दैट रिमूवल ऑफ लीव्स फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ दैट सिलेक्टेड शूट इज कॉल्ड defoliation. So defoliation is what? This is the removal of leaves. Clear? Second step is giving a cut. जहां से हमने डिफोलिएट किया है उस शूट को, उस रीजन में हम लोग उस एरिया में क्या करते हैं? इंजरी करते हैं, एक कट मारते हैं, उसको बोलते हैं गिविंग अ कट। और अगर ये कट हमने ओब्लिक कट मारा है तो उसको हम टंगिंग बोलते हैं, और अगर तो वो कट वी शेप्ड कट है तो उसको नॉचिंग कहते हैं। एंड इफ दैट cut is in form of a ring, okay, if the bark of that shoot is removed in form of a ring, that is called ringing or girdling. Okay, next is applying grafting clay. So grafting clay होता क्या? पहले हम ये देख लेते हैं। grafting clay is a mixture. Grafting clay is a mixture of clay, moss की जगह पर हम लोग hay भी ले सकते हैं, and cow dung. So clay, moss और cow dung, moss की जगह पर हम लोग finely cut hay भी यूज कर सकते हैं. So that mixture of clay, moss और hay and cow dung is called grafting clay. ओके, और ये जो हमने यहाँ पर तीनों पार्ट्स का मिक्सचर लिया, उसका रेशो क्या होता है? यहाँ पर clay is 2:1:1, मीन clay is taken as a two parts of clay, one part of moss, one part of cow dung. Okay, so that mixture of clay, moss and cow dung is called grafting clay. उस कट पार्ट को, जहां पर मैंने इंजरी की है, जहां पर मैंने डिफोलिएटेड पार्ट में जो कट मारा है, उस कट पार्ट को मैं ग्राफ्टिंग क्ले से ढक देता हूं, वहां पर ग्राफ्टिंग क्ले अप्लाई कर देता हूं, लगा देता हूं वहां पे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अप्लाइंग ग्राफ्टिंग क्ले. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? पैगिंग. अब क्या होगा? ये दो प्रकार से होगा. वो जो कट पोर्शन है, या तो उस कट पोर्शन को मैं पॉलिथीन से ढक देता हूं, या फिर उस कट पोर्शन को मैं नीचे झुका के मिट्टी में दबा देता हूं. तो प्लेसिंग दैट कट पोर्शन, द डिफोलिएटेड कट पोर्शन इनसाइड द सॉइल, दैट इज कॉल्ड पैगिंग. ओके, एंड ये जो लेयरिंग होती है, ये बेसिकली कई प्रकार की होती है. क्लियर? जैसे कि एयर लेयरिंग. एयर लेयरिंग को हम लोग गूटी भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हम लोग गूटी भी कहते हैं. एयर लेयरिंग में हम लोग करते क्या है जी? देखेंगे आप लोग. एयर लेयरिंग में हम लोग कोई भी शूट को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसका डिफॉलिएशन करते हैं. डिफॉलिएशन के बाद उसके बेसल पार्ट में एक कट मारते हैं. जैसे मैंने यहां पर एक पिक्चर बनाई हुई है. ये कट क्या है? रिमूवल ऑफ बार्क इन अ रिंग फॉर्म. यानी कि रिंगिंग है, ये गर्डलिंग है, ठीक है ना, ये रिंगिंग शो कर रहा है. और इस रिंगिंग पार्ट में हम क्या करूंगा? मैं अब यहां पर ग्राफ्टिंग क्ले यहां पर लगा दूंगा मैं. ठीक है जी, ग्राफ्टिंग क्ले यहां पर लगा देंगे. और ग्राफ्टिंग क्ले लगाने के बाद इस पोर्शन को मैं
पॉलीथीन से ढक देता हूं जी, पॉलीथीन से कवर कर देता हूं। ये जो पोर्शन है जहां पर मैंने डिफोलिएट किया है, फिर वहां पर कट मारा है, फिर वहां पर मैंने ग्राफ्टिंग क्ले अप्लाई किया, फिर उस पोर्शन को मैंने पॉली बैग से कवर कर दिया है, इस पार्ट को मैं बोलता हूं जी क्या, गुटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गुटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुटी। एंड आफ्टर सम डेज हम क्या देखेंगे, ये गुटी वाले पोर्शन में एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, जैसे ही यहां पे एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाती हैं, मैं इस लेयर को, इस ब्रांच को मैं क्या बोलूंगा अभी, लेयर, यानी कि वो ब्रांच, वो शूट जिसमें हमने आर्टिफिशियल तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करा दी हैं, अब उस शूट को हम बोलते हैं लेयर। तो ये शूट क्या है, नाउ दिस शूट इज कॉल्ड लेयर। ओके, सो लेयर इज अ शूट on which adventitious roots have developed. ओके, अब क्या करेंगे, हम इस लेयर को इसके बेसल पार्ट से डिटैच कर देंगे, सेपरेट कर देंगे यहां से पेरेंटल बॉडी से, और इसको हम रूट वाले पोर्शन की तरफ से जमीन में, मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में डाल देंगे। ओके, एक पौधे की तरह इसको लगा देंगे हम जमीन में, और अब ये एक नया प्लांट बन जाएगा। That layer will develop into a new plant. Okay, so ये जो मेथड थी लेयरिंग की, इसको बोलते हैं हम लोग एयर लेयरिंग या फिर गुटी। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि लेमन, जैसे कि गुआवा, जैसे कि लीची, एटसेट्रा। ओके, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेयरिंग, दैट इज माउंड लेयरिंग। ओके, माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग क्या है, माउंड लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जिस प्लांट में हम लोग लेयरिंग करते हैं, उन प्लांट्स में से हम लोग क्या करते हैं, जो लोअर, जो बेसल ब्रांच है, शूट है, उसको हम झुकाते हैं, उसके एक पोर्शन को डिफोलिएट करते हैं, डिफोलिएट करके वहां पे कट मारते हैं, उस कट वाले पोर्शन को ग्राफ्टिंग क्ले से ढक देते हैं, और उस पोर्शन को हम लोग फिर मिट्टी में दबा देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं मिट्टी में दबाना, इसको बोलते हैं पैगिंग करना। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको झुकाया, कट मारा, और उसको मैंने मिट्टी से दबा दिया, और उसका जो लीफी पोर्शन है, शूट वाला, जहां पर पत्ते हैं, उस वाले भाग को मैं जमीन से, मिट्टी से ऊपर ही रखता हूं, दैट इज केप्ट अबव द ग्राउंड, अबव द सॉइल लेवल। ओके, और इस पोर्शन को हमने जहां पे कट मारा, इसको मैंने मिट्टी से यहां पे कवर कर दिया, दबा दिया है, तो इसको मिट्टी में दबाना, उसको बोलते हैं पैगिंग करना। और आफ्टर फ्यू डेज क्या देखेंगे हम लोग, ये जो कट वाला पोर्शन जिसको मैंने मिट्टी में यहां पर दबाया हुआ है, वहां पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं, यहां पर रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को, शूट को पेरेंटल बॉडी से अलग कर दूंगा, यहां से इसको मैं काट दूंगा, और क्या होगा, ये एक नया प्लांट बन जाएगा, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो इस मेथड को हम बोलते हैं क्या जी, माउंड लेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माउंड लेयरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, माउंड लेयरिंग एग्जांपल्स की। एग्जांपल है जिसका चेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ओके, रसबेरी, एटसेट्रा। ओके, सो दीज आर दी cherry, raspberry, cherry, strawberry are the examples of mound layering. So this picture is showing what? It is showing air layering, and this picture is showing what? It is showing mound layering. Mound layering. Okay. Next is simple layering. Simple layering में क्या करते हैं हम लोग, उस शूट को, उस ब्रांच को जो हमने लेयरिंग के लिए सिलेक्ट की है, उसको केवल एक पॉइंट पर ही हम मिट्टी में दबाते हैं। इट इज पैक्ड एट वन पॉइंट, जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है, द शूट विच इज सिलेक्टेड फॉर लेयरिंग इज पैक्ड ओनली एट दिस पॉइंट, एट वन पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं जी सिंपल लेयरिंग। क्लियर। और सर्पेंटाइन लेयरिंग का मतलब, जब हम लोग सिलेक्टेड शूट को कई पॉइंट्स पर पैक करते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, उसको बोलते हैं जी क्या हम लोग, सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाता हूं।
सर्पेंटाइन लेयरिंग कैसे होती है जी? लाइक दिस। सपोज ये मेरा कोई प्लांट है जी, ये इसके लीव्स हैं, यहां पर इसकी कोई ये रूट्स हैं जी इसकी, ठीक है। इसकी एक नई ब्रांच को मैंने झुकाया और इसको देखिए जी, यहां पर इसको मैंने कितने पॉइंट्स पर दबाया हुआ है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, और बाकी ये इसका पार्ट ऊपर की तरफ है। ओके, तो यहां पर कितने, इस ब्रांच को मैंने एक से ज्यादा पॉइंट्स पर दबाया हुआ है, नीचे जमीन में पैक किया हुआ है, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, यहां भी ये रूट्स डेवलप करेगा और यहां भी ये रूट्स डेवलप करेगा, और अगर और कहीं से मैंने दबाया होता तो वहां भी वो रूट्स डेवलप करता, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, जब सिलेक्टेड शूट को लेयरिंग के लिए चूज की हुई शूट को जब एक से ज्यादा पॉइंट्स पर, सेवरल पॉइंट्स पर, कई सारे पॉइंट्स पर मैं उसको पैगिंग करता हूं, मिट्टी में दबाता हूं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ठीक है जी। एक होती है हमारी ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब पूरी की पूरी शूट को मैं, प्लांट की वो शूट जिसको मैंने लेयरिंग के लिए सिलेक्ट किया है, उस कंप्लीट शूट को मैं एक ट्रेंच खोद के, एक लंबा सा, उसी की साइज का लगभग एक गड्ढा सा खोद के, मिट्टी खोद के, उसमें कंप्लीटली उसको दबा देता हूं मैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच लेयरिंग। सो ट्रेंच लेयरिंग इज व्हाट, व्हेन द एंटायर शूट इज पैक्ड इनटू अ ट्रेंच। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच लेयरिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेयरिंग। बात करते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग की। सो ग्राफ्टिंग क्या है, देखिएगा, ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ग्राफ्टिंग का पर्पस क्या है, ये सब हम देखते हैं। देखिए, सपोज मेरे पास मैंगो की 2 वैरायटीज हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने भी मैंगोज है वो सब एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, सबका नाम मैंजीफेरा इंडिका है, इंडिका सबकी स्पीसीज है। ओके, तो और हजारों वैरायटीज है हमारे पास पूरी दुनिया में मैंगोज की, ठीक है ना। और मेरे पास सपोज फॉर एन एग्जांपल 2 वैरायटीज है मैंगो की। एक तो ऐसी वैरायटी है जिसका रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, जिसका रूट सिस्टम डिजीज रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, स्ट्रांग रूट सिस्टम है, बट उसके जो मैंगोज है, जो फ्रूट्स है, वो डिजायरेबल क्वालिटी के नहीं है। दूसरी मेरे पास एक ऐसी वैरायटी है मैंगो की जिसका रूट सिस्टम वीक है, बट उसके जो फ्रूट्स हैं वो डिजायरेबल क्वालिटी के हैं, डिजायरेबल क्वालिटी के हैं। ओके, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास एक मैंगो की, एक डिजायरेबल प्लांट की एक ऐसी वैरायटी हो जिसका रूट सिस्टम भी स्ट्रांग हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, और जिसके फ्रूट्स भी डिजायरेबल क्वालिटी के हों। वे दोनों ही गुण एक ही प्लांट में आने चाहिए। मुझे एक ऐसा प्लांट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ग्राफ्टिंग करता हूं। तो मैं ग्राफ्टिंग में क्या करूंगा, सपोज ये कोई मेरा प्लांट है, राइट, ये मेरा कोई प्लांट है, ठीक है जी, ये इसका सॉइल पार्ट, सॉइल में दबा हुआ पार्ट, ठीक है जी, ये रहा। इसको मैंने लगभग इसके ये वो प्लांट है जिसका रूट सिस्टम स्ट्रांग है, ठीक है जी। वो मैंगो की वैरायटी, फॉर एन एग्जांपल मैं मैंगो ले रहा हूं, ये कोई भी प्लांट हो सकता है जिनमें ग्राफ्टिंग हो सकती है, तो उसको मैं बेसल, जमीन वाला जो पार्ट है अबव द ग्राउंड, उसके थोड़े से ऊपर से उससे मैं काट देता हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टॉक, या फिर अंडर रूट स्टॉक बोलते हैं इसको हम लोग। रूट स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, अंडर रूट स्टॉक भी कह सकते हैं, सिंपली इसको स्टॉक कहते हैं। ये वो स्टॉक, यानी कि स्टॉक बिलोंग्स टू दैट वैरायटी ऑफ प्लांट, स्टॉक बिलोंग्स टू दैट प्लांट विच हैज स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। मेरे पास दूसरी एक वैरायटी जिसका रूट सिस्टम वीक है बट फ्रूट अच्छी क्वालिटी का है, उसका मैं क्या करता हूं, एक सॉफ्ट सा ब्रांच लूंगा, एक सॉफ्ट सा स्टेम लूंगा, और उन दोनों को मैं यहां पर इस प्रकार से कट मारूंगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, ये दोनों वहां पर फिट हो जाए, राइट, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो नीचे बेसल पार्ट है, जो जिसका रूट सिस्टम स्ट्रांग है, जो जमीन में अभी भी गड़ा हुआ है, उसको स्टॉक बोलते हैं। और जो दूसरा मेरा वैरायटी है जिसका रूट सिस्टम वीक था, जिसका फ्रूट डिजायरेबल क्वालिटी का है, जिसका रूट सिस्टम मुझे इंप्रूव करना है, उसका मैं एक टहनी लेता हूं, ठीक है ना, और उन दोनों में कुछ ऐसे कट
एक कॉम्प्लीमेंट्री कट मारते हैं हम लोग, ओब्लिक कट मारते हैं, किसी भी शेप का कट मारते हैं और उनको आपस में हम लोग फिट कर देते हैं, ठीक है ना। और फिट करने के बाद उनको हम क्ले से, ग्राफ्टिंग क्ले से उसको ढक देते हैं, बैंडेज कर देते हैं उसको हम लोग और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं, यहां पर नए लीव्स, नई बर्ड्स और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि कंपोजिट, दो डिफरेंट वैरायटीज को हमने मिला दिया और एक कंपोजिट प्लांट बन गया। इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग में जो हमने दूसरा ये वाला जो पार्ट लिया, इसको हम बोलते हैं सियोन। क्या बोलते हैं, सियोन, या फिर बोलते हैं इसको हम लोग ग्राफ्ट। सियोन या फिर ग्राफ्ट इसको हम बोलते हैं। क्लियर। सो अब आप ध्यान से सुनेंगे। ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया, क्या हो गया, ग्राफ्टिंग का मतलब, ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, किसी प्लांट्स के रूट सिस्टम, डिजायरेबल प्लांट्स के रूट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, एक कंपोजिट, दो वैरायटीज को मिला करके एक कंपोजिट प्लांट डेवलप करने के लिए। ग्राफ्टिंग उन प्लांट्स में की जाती है जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट हो, यानी कि ग्राफ्टिंग डाइकॉट प्लांट्स में की जाती है, मोनोकॉट्स में परफॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होता। क्लियर। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जिस प्लांट का रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उसका हम स्टॉक लेते हैं, जिस प्लांट का रूट सिस्टम वीक होता है उसका सियोन लेते हैं, ठीक है जी। दोनों को आपस में हम कट मार के एक दूसरे के फिट कर देते हैं, उसको गोबर से या क्ले से या ग्राफ्टिंग क्ले से ढक देते हैं, कवर वहां पे मिट्टी लगा देते हैं और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद हम क्या देखते हैं कि वो जो सियोन वाला पार्ट है उसमें नए नए पत्ते, नई नई बर्ड्स आनी शुरू हो जाते हैं और एक कंपोजिट प्लांट बन जाता है। दोनों ही वेराइटीज के कैरेक्टर्स एक कॉमन प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर। ओके, सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्टिंग। क्लियर। ग्राफ्टिंग में इन दो पार्ट्स को, सियोन और स्टॉक को, हम इस प्रकार से फिट करते हैं कि इनके जो कैम्बियम है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाए और कैलस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है जी। ओके, बात करते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग की टाइप्स की। ग्राफ्टिंग कई टाइप्स की होती है, ठीक है जी। सो ग्राफ्टिंग इज ऑफ मैनी टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जी किसकी, टंग ग्राफ्टिंग, जिसको कि हम विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। सो टंग ग्राफ्टिंग क्या है जी, टंग ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टंग ग्राफ्टिंग में हम लोग, ये तो हो गया जी स्टॉक, ये हो गया जी सियोन। टंग ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक और सियोन में ओब्लिक कट मारते हैं एट सेम एंगल, एट ऑलमोस्ट सेम एंगल। ओके, सो इन टंग ग्राफ्टिंग, जिसको हम विप ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, सियोन एंड स्टॉक बोथ आर गिवन oblique cut at about same angle and then both siyon and stalk are fitted into each other. That is called tongue grafting or whip grafting. Clear जी। एक होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है जी, एक ये हमारा जी स्टॉक है, क्या है, दिस इज द स्टॉक। ओके, इस स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कट मारते हैं जी। ओके, कई सारे ऐसे कट मारते हैं और इन, यहां पर एक हमने कट मारा, यहां पर हमने एक सियोन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी। हमने फिर क्या किया जी, यहां पर हमने कट मारा और यहां भी हमने दूसरे सियोन को फिट कर दिया, ठीक है जी। ऐसे हमने यहां भी कोई हमने कट मारा और यहां हमने तीसरे सियोन को फिट कर दिया, यानी कि एक ही स्टॉक में कई सारे सियोन्स को मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्राउन ग्राफ्टिंग। एक होता है जी वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, जो मेरा क्या बोलते हैं स्टॉक है, उस स्टॉक को हम एक वी शेप कर देते हैं। स्टॉक इज गिवन अ वी शेप कट और उसमें हम लोग वेज शेप वाले सियोन को इंसर्ट कर देते हैं। वेज शेप वाले सियोन को इस प्रकार से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉक को वी शेप कट दिया जाता है और उसमें इस प्रकार से
उसके कॉम्प्लीमेंट्री कट वाले डिजाइन वाले सियोन को उसमें फिट कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं जी क्या, वेज ग्राफ्टिंग। ओके, एक है जी अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है जी? अप्रोच ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने दो इंडिपेंडेंट प्लांट्स लिए जी। देखेंगे आप, ये रहा जी एक प्लांट। ओके, सपोज दिस इज वन प्लांट। ओके, ये इसके लीव्स हैं जी। ओके, ये इसके लीव्स हैं। यहां पर हमने एक दूसरा प्लांट लिया है सपोज, ठीक है जी, यहां पर हमने कोई दूसरा प्लांट लिया है और ये इसका ब्रांच है। ओके, ये इसका ब्रांच है, ये इसके लीव्स हैं। ओके, यहां पर हमने देखो दो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग प्लांट को लिया और उनकी लेटरल, उनको पास वाली ब्रांचेस को आपस में जहां पर वो टच कर रहे हैं वहां पर एक दोनों को कट दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री कट दिया, और जहां पर हमने कट लगाया वहां पे दोनों को ऐसे चिपका दिया और वहां पे उसको बांध दिया, मिट्टी लगा के बांध दिया। तो यहां पर ये दोनों बंध गए। ठीक है जी, बंधने के बाद अब जो यहां पर ये नए पत्ते आएंगे यहां से, वो एक कॉमन प्लांट बना लेगा। सो एक नया प्लांट बन जाएगा, एक कंपोजिट प्लांट बन जाएगा। मींस अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग प्लांट्स को लेते हैं, उनकी लेटरल ब्रांचेस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, जहां पर वो टच करते हैं वहां पर हम लोग कट मार देते हैं और कट मार के उनको फिर चिपका देते हैं, वहां पर बांध देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद वो जो दोनों ब्रांचेस हैं प्लांट की, वो एक कॉमन ब्रांच में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी अप्रोच ग्राफ्टिंग। और एक है जी बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमारा जो स्टॉक है उस स्टॉक में हम लोगों ने क्या किया है जी, एक टी शेप कट मारा है। क्या मारा जी, एक टी शेप कट। दिस इज द टी शेप्ड कट है। क्या है जी, स्टॉक में हमने टी शेप कट मार दिया और टी शेप कट में हमने बड को फिट किया है। किसको जी, बड। ओके, एक बड ली, सपोज ये रही जी हमारी बड। ओके, ये कोई बड है, ठीक है जी, ये रही हमारी, ये अंदर बड है और ये बड के बाहर क्या है, ये होगी बड। ये बड के बाहर क्या है, इसका बार्क है। दिस इज दी बार्क और ये इसके अंदर बड है। ठीक है ना, इस बड को मैं इस टी शेप्ड कट में फिट कर देता हूं। दैट बड इज फिटेड इनटू द टी शेप्ड कट। ओके, दैट बड इज फिटेड इनटू दैट टी शेप्ड कट। उसको मिट्टी वगैरह से हम ढक देते हैं। ओके, और कुछ समय बाद देते हैं, ये जो बड है इसमें नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं हम लोग बड ग्राफ्टिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। ग्राफ्टिंग इज डन इन डायकॉट प्लांट्स बिकॉज ये ग्राफ्टिंग उन्हीं प्लांट्स में की जा सकती है जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं, और कैम्बियम केवल डायकॉट प्लांट्स में ही होते हैं, इसलिए ये डायकॉट प्लांट्स में ही हो सकती है, मोनोकॉट्स में नहीं हो सकती, क्योंकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। ओके, ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं? ग्राफ्टिंग इज परफॉर्म्ड टू इंप्रूव द रूट सिस्टम ऑफ द डिजायरेबल प्लांट्स। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, एक प्लांट का स्टॉक पार्ट लेते हैं और जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसका स्टॉक लेते हैं, और दूसरे डिजायरेबल प्लांट का हम सियोन लेते हैं। दोनों को हम लोग फिट करते हैं, मिट्टी से या गोबर से या क्ले से उसको हम ढक देते हैं, और कुछ समय बाद देखते हैं जो सियोन वाला पार्ट है उसमें नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं और एक कंपोजिट प्लांट डेवलप हो जाता है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द grafting. Clear, so this is all about the artificial vegetative propagation. Okay, thank you.